Hello, dear champions. My name is Naveen Kumar, and you are watching Science Wire classes. So, we are studying about circle, and we have already completed two parts. In the part first, we completed notes of circles, and in the second part, we completed its theorems and exercise 10.1. Now, this is the time for exercise 10.2. So, listen, all of you. And one more thing, if you are new on this channel, first off, subscribe this one and come with me. So listen, the first question is that from a point Q, okay, from a point Q, the length of the tangent to a circle is 24 centimeter. So अपन इतना ही देखते हैं, next नहीं देखते. So it is saying that we have a point Q, and from the point we have a tangent, and the length of tangent is 24 centimeter. Yes or no? Yes. Okay. So I am assuming that the following point is Q. The following point is Q. Okay. Now ये जो डायग्राम, ये जो फिगर है, जस्ट मैंने पहले ही बना लिया ताकि अपना ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो. ओके, सो दिस इज द पॉइंट Q. Now it is saying that from a point Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter. So this is the length of tangent. यहां से यहां तक आपके पास जो है ये क्या है, लेंथ ऑफ tangent. Yes or no? And length of tangent is 24 centimeter. Next, the distance of Q from the center is 25 centimeter. So ये Q है और ये मान लो आपके पास जो है सेंटर का, सर्कल का क्या है, सेंटर. एंड वी आर एज्यूमिंग दैट द सेंटर ऑफ सर्कल इज O. सो इसकी लेंथ आपको क्या दे रखी है, 25 सेंटीमीटर. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये आपके पास क्या है, सर्कल की रेडियस. सो we didn't given the following point of contact. अपने पास ये point of contact given नहीं है. So let the following point is P. ये point क्या आपके पास P है. क्या है, P. Okay. So as we all know that we have to find out the radius of this circle. So I am assuming that radius of the circle is R, and we discussed that if we want to represent a circle, then we can represent in the simplest form C for circle. C for circle. And after that we will write its center, and its center is O, and its radius is R. So let's see, center O, radius R is a circle, and point of contact is P. Point of contact क्या है, P. Okay, got out? Okay. In theorem 10.1 studied that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact. Say so no? So ये statement आपको यहाँ mention करना पड़ेगा. By theorem 10.1 we can say that, क्या बोल सकते हो आप लोग, that OP is perpendicular to PQ. OP is perpendicular to PQ. By theorem 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact. ये आपकी theorem 10.1 आप mention कर देना. Now this is the perpendicular. Say so no? And we all know the side in front of right angle. The side in front of right angle is always known as hypotenuse. So this side is hypotenuse. Say so no? And we have two remaining sides. अगर आपको कोई अदर एंगल गिवन नहीं है, सो आप किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हो और किसी को भी क्या ले सकते हो, बेस. आप चाहो तो इसको परपेंडिकुलर ले लो आज, है ना, परपेंडिकुलर, एंड द रिमेनिंग साइड विल बी बेस. अब ये मत सोचना सर हमेशा ऊपर वाला परपेंडिकुलर होता है ना, ये मिथ है ना. ये जो है ये डिपेंड करते हैं एंगल पे. अगर आपके पास कोई और एंगल गिवन है तो अभी अपने पास कोई और एंगल गिवन नहीं है, तो आप जिसको चाहो उसको परपेंडिकुलर ले लो और जिसको चाहो उसको बेस ले लो. से सुनो. ओके, नाउ अब आपको पता है कि आपके पास एक राइट एंगल है और उसमें हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर और क्या है, बेस. The following side we have given and we have to find out its radius. Radius means we have to find out its
base. So we can say by Pythagoras theorem, and the Pythagoras theorem is also known as Bodhain theorem. So by Pythagoras theorem, by Pythagoras, or we can say Bodhain theorem. So बताओ पाइथागोरस और बोधायन थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. Say so no? And the value of the hypotenuse is 25 centimeter, or is raised to the power 2, equals to value of perpendicular is 24 square plus base square, and the value of base we don't have given, so we assume that the value of base is radius. इस सर्कल की क्या है? रेडियस. So radius and raised to the power 2. So what will be the square of 25? 625 equals to what will be the square of 24? 576 plus r square. Now we have to find out the value of r. r को किस साइड में रखोगे? ओनली एक साइड में रखोगे, बाकी सभी नंबर्स अदर साइड में. सो आप इसका ट्रांसपोजिंग कर दो. ट्रांसपोजिंग मींस अगर अभी इधर प्लस का है तो इस तरफ आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का. सो 625 minus 576 equals to r square. Yes or no? कोई दिक्कत है? अब बताओ 625 में से 576 जाएगा तो क्या बचेगा? बताओ 49. क्या बचेगा? ना 69 नहीं 49. 49 equals to r square. Yes or no? And in the earlier class we discussed that if we are taking square root then we get two values. The first one will be positive and the second one will be negative. तो आपके पास स्क्वायर रूट लेना है. आपको क्या लेना है? स्क्वायर रूट. टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड. सो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस क्या आएगा? 7 इक्वल्स टू r. एंड वी ऑल नो दैट लेंथ ऑफ एनी the side can't be negative. Radius, diameter, length, breadth, height, the side can't be negative. जो साइड है वो हमेशा कैसी रहेगी? पॉजिटिव. इट मीन्स वो जीरो से बड़ी रहेगी, वो कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है. तो आपको पता है जो -7 है, r की वैल्यू क्या है आपके पास? r इक्वल्स टू +7 and r equals to -7. But we can't take value r equals to -7. The reason is side can't be negative. साइड कैसी नहीं हो सकती कभी भी नेगेटिव. तो इसका मतलब ये वाला तो इसका आंसर पॉसिबल नहीं है. सो r इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया? 7. अब 7 क्या? इसके यूनिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपका आधा या एक नंबर कट जाएगा अगर बड़ा क्वेश्चन हुआ तो. 100% श्योर है. तो यूनिट मेंशन जरूर करना. तो +7 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. कौन सा ऑप्शन है? देखो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर. से yes or no? इन द सेकंड क्वेश्चन नाउ लिसन. इन द गिवन फिगर, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा. ओके. इन द गिवन फिगर इफ TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, वी हैव गिवन अ फिगर. हाँ, फिगर गिवन है. फिगर मींस ये, ठीक है. सो वी हैव गिवन टू फिगर्स two tangents TP and TQ are the two tangents to a circle with center O. और इसका सेंटर क्या है? O. Now so that POQ 110 डिग्री, ये जो POQ है ये क्या है? 110 डिग्री. So then PTQ is equals to, तो आपको ये वाला एंगल निकालना है. We have to find out this one. So first of all, by seeing this figure we can say that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact. Same here, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact. कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 10.1 है ना. सो आपको पता होना चाहिए, और ये आपको थ्योरम्स याद भी होनी चाहिए. इनका स्टेटमेंट भी आ जाता है, इनका प्रूफ भी आ जाता है 3 मार्क्स में, है ना. तो आपको याद होना चाहिए. सो मुझे तो याद है, आप याद करो अब, ठीक है. सो लिसन, आप चाहो तो मैं डायरेक्ट ये थ्योरम भी लिख सकता हूं, और आप चाहो तो मैं ऐसे बाय मेंशन थ्योरम 10.1 आप कंप्लीट लिखना, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस का मेथड है ना. सो बाय आंसर गिवन दैट क्या गिवन आपके पास? वी हैव गिवन टू टेंजेंट्स TP एंड TQ. टू टेंजेंट्स TP and TQ.
से सो नो। और क्या गिवन आपके पास, जस्ट वी हैव गिवन एंगल POQ इक्वल्स टू 110. सो एंगल POQ इक्वल्स टू 110 डिग्री. से सो नो. कम टू द नेक्स्ट, वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट PTQ. सो वी हैव टू फाइंड आउट एंगल PTQ. और ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है. सो बाय थ्योरम 10.1 द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ ए कांटेक्ट. सो बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1 क्या बोलोगे आप, दैट OP इज परपेंडिकुलर टू PT. OP is perpendicular to PT and OQ is perpendicular to QT. QT. OQ is perpendicular to QT. से सो नो. अब बोला सर इतना कर दिया, अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना. अब आपको समझ में आ जाएगा कैसे. देखो आपके पास इसमें कितनी साइड्स हैं इस फिगर में, हाउ मेनी साइड्स वी हैव इन द फॉलोइंग फिगर, 4. और जिसमें भी 4 फिगर होती है उसे क्या बोलते हो, क्वाड्रिलेटरल. एंड वी ऑल नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू 360 डिग्री. से सो नो. यस. सो क्या है ये आपका क्वाड्रिलेटरल, तो OPTQ. OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल. एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या बोलोगे, इन सभी एंगल्स का सम क्या होना चाहिए, 360 डिग्री. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो बताओ इन सभी एंगल्स को अगर आप ऐड करोगे तो इन सभी एंगल्स का सम क्या आना चाहिए, 360 डिग्री. यही तो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो बताओ इनको ऐड करो, एंगल P प्लस एंगल T, सॉरी है ना, स्टार्टिंग से ले लेते हैं, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 360 डिग्री. से सो नो. सो द वैल्यू ऑफ एंगल P कितना है, परपेंडिकुलर है, एंड परपेंडिकुलर मींस एंगल विल बी 90 डिग्री. ओके. एंड O आपको ऑलरेडी गिवन था. देखो आपके पास बोला सर ये O कहां गिवन था, आपके पास तो POQ गिवन था. तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो इट मींस जो आपके मिड में आ रहा है उस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, और बातें हमेशा बीच वाले की होती हैं. तो यहां पर बीच में कौन आ रहा है, O. इट मींस किसकी बात हो रही थी, 110 डिग्री की, O की बात हो रही थी. किसकी, O की. So 110 plus this is the perpendicular. It means its angle will be 90 degree plus angle T. We have to find out. देखो आपको पता है ये फाइंड आउट करना था, और यहाँ पर बीच में कौन आ रहा है, T. It means फाइंड आउट कौन करना है, T फाइंड आउट करना है. So T की जगह T plus Q 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री. समझ में आ रहा है. ओके. सो 110 प्लस 90 200, 200 प्लस 90 290. सो 290 डिग्री प्लस एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री. से सो नो. अब आप इसका ट्रांसपोजिंग कर दो, इधर लेके जाओ इसको, इधर लेके आओगे किसका हो जाएगा, माइनस का. सो एंगल T इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री. और जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 70 डिग्री. इट मींस एंगल T इक्वल्स टू 70 डिग्री. और आपको आप बोल सकते हो कि सर हमें तो PTQ चाहिए, तो आप लिख दो एंगल PTQ इक्वल्स टू 70 डिग्री. सो इट इज अवर आंसर. बताओ कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन राइट. से सुनो, समझ में आ रहा है, नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार फिर से. लिसन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P. आपके पास एक पॉइंट P लेना है और उससे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, 2.
सो मान लो मैंने ये पॉइंट ले लिया P, फिगर मैंने पहले इसलिए बना लेता हूं ताकि है ना टाइम कंज्यूम नहीं होगी, सर्कल सही से नहीं बनेगा, कभी क्या, इसलिए पहले बना ली मैंने. सो दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट एंड we are assuming that the following point is P. Next, from a point P, if tangents PA and PB, तो जो point P है उससे कितनी tangents है? 2. So this one is point A and the following point is B. Circle with center O and its center is O. 2 and with center O are inclined to each other. Inclined means होता है झुका हुआ होना. क्या होना? झुका होना ऐसे. तो ये जो झुका है ना, ये वाला, ये इससे बोलते हैं इंक्लाइंड, झुका हुआ. कितना झुका हुआ है ये, इनके बीच में एंगल कितना है? सो द फॉलोइंग, देखो ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है. इंक्लाइंड का मींस होता है झुका होना. क्या होता है? झुका होना. सो इंक्लाइंड टू ईच अदर एन एंगल ऑफ 80 डिग्री. इसका मतलब ये वाले को, ये पीए एंड पीबी एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है? 80 डिग्री. सी सो नो? समझ में आ रहा है? ओके. देन POA is equals to POA. आपको ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल कितना होगा. सो इससे पहले अपन कुछ और डिस्कस करते हैं. लिसन, गिवन, क्या गिवन आपके पास? बोलो. मान लो ये इसकी क्या है? रेडियस. और ये इसकी क्या है? रेडियस. इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, है ना, ये गिवन था ना. सो गिवन सर्कल, C फॉर सर्कल, and its center is O, or we are assuming that its radius is R. So given circle with center O and radius R, radius अपन ने assume किए, ठीक है. And PA and PB two tangents, ये आपके पास क्या है? गिवन है. से सुनो, और क्या गिवन आपके पास? वी हैव गिवन दैट APB, ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? 80 डिग्री का. बोले सर पता कैसे लगा? यहाँ पे तो गिवन भी नहीं है. तो इसने बोला था दैट PA एंड PB आर इंक्लाइंड ईच अदर विद एंगल 80 डिग्री. सो इंक्लाइंड का मतलब होता है झुका होना. तो इसका मतलब ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है. और जिस एंगल की बात कर रहा है उसको कहां लिखते हैं? हाँ बीच में. हाँ बीच में. कहा? सो APB equals to 80 degree. Yes or no? And what we have to find out? Find out क्या करना है आप लोगों को? We have to find out angle POA. We have to find out the angle PO. ये फाइंड आउट करना है. सो लिसन, पहले आपको पता है थ्योरम 10.2 में आपने क्या किया था? दैट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, कि आपने एक थ्योरम प्रूव की थी कि अगर आप किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से टू टेंजेंट्स क्या करते हो? ड्रॉ करते हो, तो उनकी लेंथ क्या होगी? इक्वल. यस और नो? द सेम हियर. तो आपने उनको प्रूफ करने के लिए क्या किया था? इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को क्या प्रूफ किया था आपने? कॉन्ग्रुएंट किया था कि नहीं किया था? बोला सर अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? अब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे तो पता है क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये 90 डिग्री का है. कैसे? बाय थ्योरम 10.1. ये भी पता है आपको कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, बाय थ्योरम 10.1. ये आपको गिवन है 80 डिग्री. अब आपको पता है कि ये 90, ये 90, ये 80, तो इन सबको ऐड करने पे क्या आ गया आपके पास? 260. 90 और 90 180, 180 और 80 260. एंड वी ऑल नो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल कि सभी एंगल्स का सम क्या आना चाहिए था? 360. अगर आप ऊपर वाले ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर देते हो? कॉन्ग्रुएंट. तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या जाएगा? इक्वल. तो आपको पता है ये पूरा 100 का था, तो ऊपर वाला कितने का आ जाएगा? 50. लेकिन अपन प्रूफ करते हैं, तो देखो. सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. कौन सा क्वाड्रिलेटरल आपके पास? बोलो. OAPB. OAPB. And we all know that sum of all angles of a quadrilateral will be 360 degree. So angle O plus angle A plus angle P plus angle B equals to 360 degree. Say so no? आपके पास ये वाला नहीं है. बोला सर A 90 डिग्री कैसा आया? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact, or we can say by theorem 10.1. Okay. So ये वाला और ये वाला बाय थ्योरम 10. कितने डिग्री का हो जाएगा? 90. सो देखो
एंगल ओ प्लस एंगल ए कितने डिग्री का 90 प्लस एंगल पी कितना गिवन आपको 80 प्लस 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री। से सो नो। अब आप इन सबको ऐड करोगे क्या जाएगा आपके पास, बोलो 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 जल्दी। 90 और 90 180, 180 और 80 260। तो इस 260 को आप उधर ट्रांसफर कर दो, ट्रांसपोजिंग कर दो। एंगल ओ इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री। इट मींस एंगल ओ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 100 डिग्री। से सो नो। बट वी हैव टू फाइंड आउट पीओए। आपको तो ये चाहिए पीओए वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब आप ऊपर वाले ट्रायंगल को नीचे वाले ट्रायंगल को क्या प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट। आप चाहो तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो एंगल ओ है, ये एंगल ओ जो है वो कंप्लीट है यहां से यहां तक। से सुनो। और इस यहां से यहां तक इसमें कितने एंगल आ रहे हैं, 2 एंगल्स आ रहे हैं। कौन कौन से, पी ओ ए, एक तो ये हो गया ऊपर वाला, ये देखो ये वाला, और दूसरा पी ओ बी, एक ये वाला हो गया। तो इसका मतलब इसको और इसको ऐड करोगे तो पूरा एंगल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आप इस एंगल ओ को और क्या लिख सकते हो, पी ओ ए प्लस एंगल पी ओ बी इक्वल्स टू 100 डिग्री। से नो लिख सकते कि नहीं लिख सकते। और मान लो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट। अब आपको क्या प्रूफ करना है, आप इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या प्रूफ कर दो, कॉन्ग्रुएंट। सो फ्रॉम ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB, से नो। अब आपको पता है जो PO है ना, PO वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन। से नो है ना। सो PO इक्वल्स टू PO, कॉमन साइड। नेक्स्ट। अब आपको एक बात और पता है, OA एंड OB बोथ आर रेडी। देखो एक होती है ना तब तो बोलते हैं रेडियस, और एक से ज्यादा होता है तो प्लूरल, और जो रेडियस का प्लूरल होता है वो होता है रेडियाई, ठीक है, रेडी। सो बोलो OA इक्वल्स टू OB, रेडी ऑफ द सर्कल। एंड अब एक बात और, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle are the length of tangents drawn from an external point to a circle are equal। कि अगर आप किसी बाहर वाले पॉइंट से क्या ड्रॉ करते हो, टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो, तो उस पर जो टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी बाय थ्योरम 10.2। सो वी कैन से PA इक्वल्स टू PB बाय थ्योरम 10.2। तो देखो ये भी इसकी साइड है, ये भी इसकी साइड, और ये भी इसकी साइड है। सो बाय एस एस एस, साइड 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 congruence rule, we can say both triangles are congruent. So it means triangle POA is congruent to triangle POB by side 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 congruence rule। तो ये से क्या हो गया, congruent हो गया। से सुनो। और जब ये congruent हो गए तो बाई CPCT क्या बोलेंगे, बाई CPCT corresponding parts of congruent triangles। So by CPCT, by CPCT we can say that ये जो ये एंगल है POA, एंगल POA इक्वल्स टू एंगल POB, ये इसके क्या जाएगा, इक्वल। से सुनो। और ये जो वैल्यू है आपको क्या चाहिए था, POA, ये ऊपर वाला एंगल चाहिए ना आपको, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो देखो यहां पर आपके पास जो POB आ रहा है उसकी जगह आप क्या लिख दो, POA लिख दो। क्या लिख दो, POA। तो देखो पहले से क्या आ रहा है, POA प्लस, और जो POB है उसकी जगह भी आपने क्या लिख दिया, POA इक्वल्स टू क्या है 100 डिग्री। और इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2POA, 2POA इक्वल्स टू 100। से सुनो। अब ये जो 2 है ये इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में। सो मैं इसको हटा देता हूं, और क्या आ गया, इसको इससे डिवाइड कर दो। सो एंगल POA की वैल्यू क्या आ गई, 50 डिग्री। क्या आ गई, 50 डिग्री। और यही आपका क्या है, आंसर। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4, सो लिसन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखो, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। कि आपके पास कोई सर्कल है, आप उसका क्या ले रहे हो, डायमीटर। एंड इफ वी आर ड्रॉइंग टेंजेंट्स एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, सो जो आप एंड पॉइंट पे, आप डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो आप लाइंस लोगे वो टेंजेंट्स जो वो पैरेलल होंगी,
से आपको ये प्रूफ करना है। सो देखो मैंने ये फिगर पहले ही ड्रॉ कर ली ताकि टाइम ज्यादा कंज्यूम नहीं हो। सो लिसन ऑल ऑफ यू, लाइक दिस इज द, वी आर एज्यूमिंग दैट द फॉलोइंग पॉइंट पी क्यू is the diameter of the circle with the center O. Say yes or no? And AB and CD are two tangents. और ये आपकी क्या है? Two tangents. Say yes or no? So देखो सबसे पहले आपने क्या assume किया that PQ is a diameter. PQ is diameter of a circle with center O. PQ is a diameter of a center. PQ is diameter of a circle with a center O. With the center O. Say yes or no? Okay. Next, AB and CD are two tangents which touching the circle at point Q and P. So AB and CD are two tangents. AB and CD are two tangents. Two tangents which touching the circle, which touching the circle at point Q and P. Say yes or no? Okay. Now अपन ने थ्योरम 10.1 पढ़ी। क्या पढ़ा आपने? The tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact. कि आपके पास जो ये point of contact है ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? इधर ये इधर एंगल बनाएगा कितने डिग्री का? 90. सेम ईयर आपके पास जो इधर ये पॉइंट सर्कल का जो सेंटर है और ये इसकी क्या है? रेडियस, और ये आपका क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप इस रेडियस के थ्रू ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90. बोलो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बाय थ्योरम 10.1 से सुनो। सेम ईयर अगर इधर 90 डिग्री का है तो इधर भी कितने डिग्री का होगा? रीजन बोला सर इधर 90 इधर भी 90, बिकॉज स्ट्रेट लाइन मैक्स एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ये AB क्या है आपके पास? स्ट्रेट लाइन जो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 180 का। अगर इधर 90 है तो इधर क्या लूं कि 180 हो जाए? तो 90 लूंगा, और कोई भी वैल्यू लोगे तो 180 नहीं आएगा। सेम ईयर इधर कितने डिग्री का एंगल आएगा? 90। कैसे? तो लिख देते हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius, is perpendicular to the radius, perpendicular to the radius through the point of contact, through the point of contact. Say yes or no? ये आपकी कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 10.1 that tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact. इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री के आ गए? 90 डिग्री के। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं that एंगल OQA equals to 90 degree. Say yes or no? Same here, angle OQB equals to 90 degree. और ऐसे दोनों ऊपर वाले एंगल बोलो, एंगल OPC, एंगल OPC इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ऐसे ही एंगल OPD इक्वल्स टू 90 डिग्री। बोला सर ऐसा करके क्या मिलेगा आपको? मुझे जो मिलेगा वो मैं बताता हूं क्या मिलेगा। सो लिसन ऑल ऑफ यू, आपको पता है अगर मान लो आपके पास कोई टू पैरेलल लाइंस है और उनको कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करे जिसे आप क्या बोलते हो? ट्रांसवर्सल। तो इधर जो एंगल बनेगा वो एंगल अगर इधर बन रहा है, क्या बोलते हो इसे? जेड की शेप। बोलते हो कि नहीं बोलते? जेड शेप। और इसे बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखो आपको जेड की शेप दिखाई दे रही है, ध्यान से देखना। बोलो सर दिखाई दे रही है, यस। तो इट मींस यहां जो एंगल बनेगा वो एंगल यहां बनेगा। रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ऐसा होता है, ये कब पॉसिबल है? जब टू लाइंस क्या हो? पैरेलल। लेकिन अभी तो पता ही नहीं अपने को ये लाइन पैरेलल है। वी आर टेकिंग इट्स रिवर्स। अपन इसका रिवर्स लेके चल रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे की क्या है? इक्वल। सो कौन सा एंगल है ये? एंगल OPC। एंगल OPC इक्वल्स टू कितने डिग्री का? ये 90। और इधर OQB ये भी कितने डिग्री का है? 90। तो ये भी 90 और इसके साथ में OQB ये भी कितने डिग्री का है? 90 ईच 90 डिग्री। से सुनो। और ये कौन सा एंगल है? रिवर्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो लिख देता हूं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यस और नो? ऐसे सेम आप देखना, अब आपको ये जेड तो दिखाई दे दिया, अब इसका उल्टा जेड भी आपको दिख रहा होगा। बोलो दिख रहा है क्या? यहां जो एंगल बन रहा है वही एंगल यहां बन रहा है, यस और नो? कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो एंगल ओ पी डी, ओ पी डी इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए। सेम हियर, each 90 डिग्री एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बोलो यस और नो? सो आपको पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कब बनते हैं? जब टू लाइंस क्या हो? पैरेलल। यस और नो? तभी तो बनेंगे। सो बाय रिवर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कि अगर आपके पास ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, इसका मतलब ये लाइंस क्या है? पैरेलल, तभी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं, अदरवाइज तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते ही नहीं। इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। तो कैसे पता लगा? बाय रिवर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बाय reverse of alternate interior angles, alternate interior angles, by reverse of alternate interior angles, we can say, we can say that, we can say that ये जो lines हैं वो एक दूसरे के क्या है? Parallel. So it means we can say that AB is parallel to CD, AB is parallel to CD, say so no? Hence proof. और ये आपको क्या करना था? प्रूफ करना था कि ये वाली जो लाइन है वो इसके क्या है? हाँ, पैरेलल। तो यहां पर मैंने मेंशन करना भूल गया, तो यहां पर लिख लेना टू प्रूव। क्या प्रूव करना था आपको? ए बी पैरेलल टू सी डी। यस और नो? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सो लिसन, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस पर क्या है? परपेंडिकुलर है, ओके, टू द टेंजेंट, टेंजेंट पे, टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। तो आपको बोल रहा है कि ये कहां से पास होगा? सेंटर से ही पास होगा। ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये कहां से बनाएगा? ये सर्कल से पास होगा तभी बनाएगा, और कहीं से पास होगा तभी नहीं बनाएगा। यस और नो? तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट, है ना? सो लेट एज्यूम, अभी अपने पास कुछ नहीं है, आपके पास ये गिवन है कि टेंजेंट और ये कहां से 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, कब? जब ये सर्कल के सेंटर से पास होगी। तो प्रूफ करना है अपने को। सो लिसन, लेट अस कंसीडर अ सर्कल, let us consider a circle with center, with center O, say so no? ओके, और मान लो ये आपके पास जो टेंजेंट, इसको मैंने क्या बोल दिया? ए बी, है ना? एंड टेंजेंट, टेंजेंट ए बी विच टचिंग दिस सर्कल एट पॉइंट पी। कहां पे टच कर रही है? पॉइंट पी पे। सो विच टेंजेंट ए बी इज टचिंग दिस सर्कल, tangent AB is touching this circle at point of contact at point P। आप इसको समझ जाना कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। Yes or no? ओके, अब आपको प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, जस्ट वी हैव टू प्रूव नाउ दैट कि ये जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये कब बनाएगा? जब ये सर्कल के कहां से पास होगा? सेंटर से। सो आपको प्रूफ करना है कि ये जो लाइन है ये इस पे क्या बनाएगी? 90 डिग्री एंगल। ये आपको ऊपर वाला स्टेटमेंट यहां लिख देना, ठीक है? कि ये अगर सर्कल के सेंटर से पास होगा तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री, ठीक है? इसको प्रूव दैट को हटा के लिख देना, ये आपको प्रूफ करना है। सो लिसन, प्रूफ, प्रूफ में करते क्या है? मान लो ये अपने को प्रूफ करना है कि ये इस सर्कल के सेंटर से जाएगा तभी 90 डिग्री बनाएगा, ओके? ये आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो मान लो मैं इसको अपोजिट ले लेता हूं, मींस मैं इस क्वेश्चन को बाय कंट्राडिक्शन मेथड से सोल्व करना चाहता हूं कि ये सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा, सर्कल के सेंटर से पास नहीं हो रहा। सो एज्यूम दैट इट इज नॉट पासिंग, इट इज पासिंग, लिख देते, इट इज पासिंग थ्रू दी, थ्रू दी पॉइंट ओ डैश, और यहां पर लिख लो अदर देन ओ, कि जो ओ आपका एक पॉइंट है उसके अलावा कोई एक और पॉइंट है ओ डैश, वहां से पास हो रहा है, और वो ओ डैश मैंने मान लिया यहां है। यस और नो? अब ये वाला पॉइंट, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये यहां से पास हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है? पास। अब मैं एज्यूम कर लेता हूं कि अगर ये यहां से पास हो रहा है, तो देखो अगर ये सर्कल के सेंटर से पास होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90।
तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि अगर ये यहां से पास होगा तब भी कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90। सो लेट एज्यूम दैट ये बोल दिया ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। सीएसओ नो, है ना, कि अब ये यहां से पास नहीं हो रहा। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू पी बी या पी। अब ये सर्कल के सेंटर ओ से पास नहीं हो रहा है, ये किसी पॉइंट ओ डे से पास हो रहा है, तो आपने लिख लिया। तो मैं इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं दैट ओ डैश पी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मान लो ये परपेंडिकुलर है तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री। बट वी नो बाय थ्योरम 10.1, क्या है थ्योरम 10.1, the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of a contact, कि वो रेडियस जो है ना वो टेंजेंट की क्या होगी परपेंडिकुलर होगी। सो बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1 वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं अपन, दैट OPB एंगल OPB इक्वल्स टू 90 डिग्री। से सो नो, और इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब आप ध्यान से देखोगे तो देखो इक्वेशन सेकंड में इधर जो आपके पास 90 डिग्री की वैल्यू है ये उठा के आप यहां रख दीजिए इक्वेशन सेकंड में। सो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब जब आप ये 90 डिग्री की वैल्यू उठा के यहां रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, एंगल OPB इक्वल्स टू एंगल O डैश PB। ये बोल रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है इक्वल। लेकिन आप ध्यान से देखना, देखो एक तो ये आपके पास है, बताना, एक तो ये बोल रहा है ये 90 डिग्री, ये वाला एंगल, ये हो गया आपके पास O डैश PB, और एक ये वाला एंगल, ठीक है। क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? मुझे इक्वल नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि मुझे इनके बीच में यहां पर थोड़ा सा क्या लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है। लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्या आपको ये दोनों एंगल इक्वल दिख रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहे, क्योंकि इनके बीच में देखो आप देखोगे थोड़ा सा आपको क्या दिखेगा, गैप दिखेगा। सीएस नो दिख रहा है क्या? तो इसका मतलब, लेकिन फिर भी बोल रहा है कि ये क्या है, इक्वल है। तो ये इक्वल कब पॉसिबल है? ये इक्वल तब पॉसिबल है जब मैं इस पीओ डैश वाली लाइन को उठा के और इसके ऊपर रख दूं ऐसे। ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, ये इसको उठा के कहां लेके आ जाऊं, ऐसे इसको उठा के यहां इस पर लेके आ जाऊं, ओवरलैप करवा दूं, कोइंसिडेंट करवा दूं, कि एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन क्या करवा दूं, लाई करवा दूं, कि जब आप इस पीओ डैश लाइन को पीओ पर लेके आ जाओगे तब ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल। कि अगर ये वाला ओ डैश पॉइंट है, अगर इस पे आ जाए ओ डैश, तो देखो ये पीओ भी हो गया और ये क्या हो गया, पीओ डैश भी हो गया। सो ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, it is possible only when, it is possible only when, कब पॉसिबल है ये? when point o dash, when point o dash lie on point o, when point o dash lie on point, lie on point o, या फिर अपन बोल सकते हैं कि पॉइंट o एंड o dash कोइंसिडेंट, पॉइंट o एंड o dash आर कोइंसिडेंट। ये दोनों पॉइंट कोइंसिडेंट का मींस क्या होता है कि एक के ऊपर दूसरा, एक के ऊपर दूसरा, इसका ये किसका मींस होता है, कोइंसिडेंट का। सो अगर ये ओ डैश अगर ओ पे लाई करेगा तो इसका मतलब ये वाली लाइन हट जाएगी, यहां पर ही क्या जाएगा आपका ओ डैश। अब ये वाला ही पॉइंट ओ डैश है और ये ओ है, तो देखो ये पीओ भी बोल सकते हो और इसे क्या बोल सकते हो, पीओ डैश भी बोल सकते हो। ये तभी पॉसिबल है। अब देखो पीओ बोल दो चाहे पीओ डैश बोल दो, सेम एंगल बनाएंगे, बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो इसका मींस है कि ये वाली जो लाइन आपके पास थी, ये वाली जो लाइन आपके पास थी, ये इक्वल एंगल कब बनाएगी, जब आप इस लाइन को उठा के पीओ वाली लाइन पे ले आओगे, तभी ये पॉसिबल है। इसका मीन्स अपन बोल सकते हैं कि जो ये वाली जो लाइन है ये कहां से पास होगी, सर्कल के सेंटर से। सो देयरफॉर वी कैन से दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मैं लिख देता हूं, द परपेंडिकुलर at the point of contact, the perpendicular at the point of contact, the perpendicular at the point of contact to the tangent, to the tangent, to the tangent to a circle, to a circle, to a circle passes through the center, कि कहां से पास होगी, सेंटर से, passes through the center, passes through the center, passes through the center। Yes or no?
और ये आपका क्या हो गया, हैंड्स प्रूव्ड। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था कि ये जो है ना ये कहां से पास होगी, सर्कल के सेंटर से। अगर आपको थ्योरम समझ में नहीं आई हो, इट मींस क्वेश्चन नंबर 5 समझ में नहीं आया हो, तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। एंड थैंक यू। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर दीजिए और उनसे बोलिए कि आप इस चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए बहुत ही अच्छे और इजी वे में, है ना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय।